Hello guys, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. My name is Anshuman Raj. I secured a rank of 107 this year and I am into IAS. Last year also I got selected with 537 rank and I was into IRS. So in this segment we are going to take few questions of the aspirants and I am going to answer them for you. So first question is how to avoid distractions while preparing for UPSC Civil Services examination. So I would like to answer some of this question in Hindi as well. तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक मंकी की. uh, uh, एक बार एक आदमी था and he thought there was some guru who can give him all the ज्ञान in the world. So he went there and he begged कि मुझे वो आप एक मंत्र बता दे जिससे मुझे दुनिया का सारा नॉलेज आ जाए. So he was saying that I don't have any such mantra. So but he was so adamant that no you have and you give me. तो उसने कहा कि ये एक मंत्र लिख के दे दिया एंड ही सेड कि ये रख लो अपने पास और इसको पढ़ते टाइम तुम अपने दिमाग में कभी भी मंकी का ध्यान मत लेके आना. तो उसने कहा कैसी बात करते हैं आप, मैंने तो आज तक बंदर के बारे में सोचा भी नहीं है. बट एज ही स्टार्टेड टू मूव ऑन फ्रॉम हिज आश्रम, वो सीढ़ी पे जाते टाइम उसके दिमाग में मंकी आ रहा है. एवरी टाइम एवरीवेयर ही इज गोइंग ही इज सीइंग ओनली monkeys. व्हेन ही रीच हिज होम, इन हिज वाइफ ओपन द डोर एंड उसमें भी उसको मंकी दिखाई दिया एंड पूरी रात उसको सिर्फ मंकीज ने परेशान किया. नेक्स्ट डे एज ही वाज ट्राइंग टू रीड दैट मंत्रा ही वाज ओनली थिंकिंग ऑफ मंकीज एंड ही थॉट ही इज गोइंग मैड. एंड फाइनली वो आया, उसने कहा कि अपना रखो मंत्र अपने पास, मुझे बस इस बंदरों से छुटकारा दिला दो. सो दोज हु आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इफ यू थिंक दैट समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू एंड यू हैव टू ब्लॉक समथिंग, देन वो आपको हमेशा ही परेशान करता रहेगा. नाउ लेट अस talk about few distractions. Facebook, maybe friends, maybe some other obligations that you have, maybe कुछ और भी आपकी चीज है. तो जब तक आप इन चीजों को अपने ऊपर बना के रखिएगा कि you have to get rid of them, they will keep on distracting you. So the best thing is overcoming them, as Buddha has said. So overcome them, understand the nature of distraction. If you understand the nature of social media, how Instagram or Facebook works, I think you can avoid those distractions. And in other questions, again, we'll come on this theme of distractions recurrently. तो वो आपको आगे क्वेश्चंस में दिख जाएगा. The second question is where should someone focus more, current affairs or static portions? So again, it depends whether you are preparing for prelims or means. 2016 के बाद यूपीएससी का पैटर्न कुछ ऐसा था कि लोगों ने सोचा कि करंट अफेयर्स बेस ज्यादा आ रहा है. इन 2016 some 60% of questions came from current affairs, especially those PT 365 were very useful. तो लोगों का उस तरफ डायरेक्शन चला गया. देन अगेन यू हैव सो मेनी थिंग्स इन मार्केट, like you have editorial analysis, PIB news analysis, every other like every other coaching institute is they have started bringing their own current affairs analysis. तो मेरा मानना है कि in prelims at least, if your concepts are clear, if you are focusing more on static, then only you can understand the dynamic part or current affairs part. But after 2017, especially in 2018, 19, 20 paper, we are saying that UPSC is giving a mix of current and dynamic, static and dynamic. And in that, unless and until your static portion is clear, you cannot understand or you cannot answer the dynamic question. For example, there were so many questions on drone. So drone, maybe it was in news, but unless you understand the basic fundamentals of drones, you cannot answer it. So for prelims, my take was something around 65% on static and 35% on dynamics. And again, for mains, I believe the ratio is somewhat 70% towards static and 30% for mains. Why I am saying that, आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहेंगे, but again you have to answer those based on some static portion. For example, in IR, people think IR is all about current affairs, but those current affairs are based on some principles of international relationship, or they are somewhat related to maybe a country's history. For example, India's relationship with historical relationship with those countries, maybe during USSR era or something like that. So unless and until you are well versed with static portion, you cannot answer the dynamic portion. So your focus should be on understanding things. Next question is what is difference between a serious and non-serious UPSC aspirant? Let me tell you something about UPSC. Like all the isms, like people have fallen into Marxism, communism, or
maybe capitalism, and like all the isms. I think UPSC has become ism for many aspirants. So there is a cult of UPSC. Maybe you can see there are so many videos of Labasna and other motivational videos. So don't fall into those. Like UPSC should not be idolized. If you make and turn something into an idol, and if you are only worshipping it, then you will think that it is out of your reach. So a serious aspirant take motivation from these things, but do not keep on taking these motivations like drugs. आप देख लो आपको कि यूपीएससी करना है, एंड वो आपका लबासना शुड बी लाइक वन थिंग, बट देन it is totally dependent on how you are preparing it. If you are seeing videos every day, it is not going to help. So a serious aspirant, he plans everything, he works on those plans, he makes a strategy, he has fixed aims and goals, and then based on those he works, and then he clears and he goes. A non-serious aspirant, he keep on dragging the years, he keeps on looking on motivation, he keeps on saying videos, and in the end nothing happens because he does not have any fixed plan. So motivation is one thing, and then you have to plan, and your style should be another thing. Like you should have a plan for that. So चौथा सवाल है हमारे पास कि how to deal with the rumors regarding the exam papers. In last year and this year also we are seeing कि यूपीएससी के बिकॉज कोरोना की वजह से प्रीलिम्स का टाइम भी डिले हो रहा है, मेंस के टाइम में भी अनसर्टेनिटी थी, एंड दिस ईयर ऑल्सो वी आर सीइंग सेम थिंग. तो इस अनसर्टेनिटी या र्यूमर मॉन्गरिंग से हम क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये सारी चीजें बाधित नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी ये बाधा है एक. तो मैं जो सीरियस एस्पिरेंट रहते हैं उनके लिए मैं एक बताना चाहूंगा कि देयर वाज अ बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, एंड इट हेल्प मी अलॉट लास्ट ईयर. क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे लाइफ में भी अनसर्टेनिटी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बिकॉज लाइफ में हम हमेशा एक गोल लेके चलते हैं. तो जिनके लिए प्रीलिम्स मई में था उनके लिए एक मई या जून जो भी था उनके पास एक गोल था कि मेरे पास इस डेट को एग्जाम था. अगेन वो गोल अभी शिफ्ट हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है. तो जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग में कि यू हैव टू मेक न्यू गोल्स इन योर लाइफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट करंट सिचुएशन इज. तो आप अक्टूबर में एग्जाम होगा, मे बी पोस्टपोन हो जाए, प्रीपोन हो जाए, जो भी होना है हो, बट आप मान के चलिए कि अभी अक्टूबर में है तो उसके लिए आप क्या गोल्स बना सकते हैं? प्रीपोन तो ऑब्वियसली नहीं होगा. तो नए गोल पोस्ट को शिफ्ट करिए, आप फिर से प्लान करिए कि आपको प्रीलिम्स के लिए कितने दिन चाहिए, मेंस के लिए कितने दिन चाहिए. मे बी इस ड्यूरेशन में आप वापस से आंसर राइटिंग, ऑप्शनल या एथिक्स पे वापस से फोकस कर सकते हैं. लास्ट के 2 महीने में इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रीलिम्स, अगेन यू कैन कम बैक टू ओनली प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो आप अपने गोल्स को वापस से रीओरिएंट करिए, वो हमेशा करते रहिएगा लाइफ में, वरना आपको वही रुकावट आती रहेगी आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है. तो र्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, रीओरिएंट करिए अपनी गोल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज हैंड राइटिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो जिनमें आप में से जिसने भी मेरा क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आंसर शीट देखा होगा, मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार ही टाइप है. मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या होगा पता नहीं, मेरी राइटिंग की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन ना हो. तो 2-3 चीजें होनी चाहिए. पहले कंटेंट मैटर्स. आपका कंटेंट ही मोस्ट सुप्रीम है. आपकी मोस्ट सबसे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो सकती है, बट वो मार्क्स नहीं दिलाएगा अगेन. बट आपको एग्जामिनर के माइंड में घुसना है. एग्जामिनर मे बी ही इज 60 years old who is checking the paper and he is like very serious guy मे बी. तो उनको क्या चाहिए कि आप आंसर जो है वो क्लियरली लेजिबल होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल, सिंपली और डायरेक्शंस के साथ. ऐसा नहीं कि आपने बीच में एक गोला बना दिया एंड देन यू आर मेकिंग ऑल द स्पाइक्स कि आपको लगेगा कि फैंसी है, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है आंसर राइटिंग में. मे बी उसके लिए वो कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है. आपके लिए वो इजी हो सकता है, बट उनके लिए वो बहुत मुश्किल हो सकता है. तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए. मेरी हैंड राइटिंग खराब थी, मैंने क्या किया, एक एक वर्ड को सेपरेटली लिखना शुरू कर दिया. प्रैक्टिस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने एक एक वर्ड को सेपरेटली किया. 2 वर्ड्स के बीच में, 2 लाइंस के बीच में मैंने गैप रखा अच्छा खासा, ताकि मिक्स ना हो और पढ़ने वाला अगर मेरी खराब हैंड राइटिंग है तो भी पढ़ सके. तो अगर, और फिर मैंने कर्सिव में कभी नहीं लिखा, एक एक वर्ड अलग लिखा. टाइम लगा, मेहनत लगा, बट कुछ समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो हैबिट में आ गया.
जिनकी हैंडराइटिंग खराब है वो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। गैप्स बढ़ाइए, जो फॉन्ट्स है उसका साइज बढ़ाइए, और अलग अलग लिखना शुरू करिए, तो फिर हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपके पास कोई एक पैरामीटर होना चाहिए या कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन व्हाट, ये इशू आता है। तो आपके पास जब तक कोई प्लान नहीं है तभी आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये प्लान था एंड वेदर आई एम कंसिस्टेंट टू दैट प्लान और नॉट। तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे शुड हैव मल्टीपल प्लान लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लान, कि मुझे इस साल में टिल नेक्स्ट प्रीलिम्स और टिल नेक्स्ट मेंस मेरा लार्जर प्लान क्या है। देन यू शुड हैव सम वीकली और मंथली प्लान, एंड देन यू शुड हैव अ डेली प्लान। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए पहली चीज आप प्लान बनाइए। मेरा क्या होता था, एक टारगेट था कि मैं ऑप्शनल में भी अगले 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा, और उसके लिए मैं डेली इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ रात में। ये मेरा टोटल फुल ओवरऑल प्लान था। फिर मे बी वीकली प्लान था, और डेली प्लान ऐसा होता था कि रात में सोते टाइम मैं डिसाइड कर लेता था कि कल, जैसे अगर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो लाइक कल मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ एंड इन दैट आई एम गोइंग टू रीड दिस मेनी चैप्टर्स। ये मेरा टाइम रहेगा। जस्ट मैंने रफ आइडिया दिमाग में लगा दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कल मुझे टेस्ट देना है या कुछ और करना है। एंड अगेन सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन। सो आप अपने टारगेट्स की के लिए कितने सेल्फ अकाउंटेबल है, कितने डिसिप्लिन है, वो आपके ऊपर है। तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपके पास एक टारगेट रहेगा और आपके अंदर में डिसिप्लिन रहेगा। और तीसरा, अगेन इंटरनल मोटिवेशन इज द मेन थिंग विच ड्राइव्स यू। आपको लगता है कि आपको किसी चीज को अचीव करना है, देन यू विल स्टे मोटिवेटेड एंड दैट विल ओनली कम फ्रॉम इनसाइड यू, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मोटिवेशन यू विल फेड इन सम टाइम, बट लुक एट योर ओन स्ट्रगल्स कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आप कितनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को जरूर वो करिए, अचीव करिए। Next question is what was your daily routine for studies? So again it is a very personal question and personal opinion, सबका अलग हो सकता है। मेरा ऐसा था कि मैं अराउंड 7:30 के आसपास उठता था डेली। ऑलमोस्ट 8 बजे से पढ़ना शुरू करता था, 8 to 9:30 न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मेरा ऐसा प्लान था कि हिंदू पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस के सिर्फ एडिटोरियल्स। अगर मुझे अच्छा लगता है कि एडिटोरियल्स किसी अच्छे राइटर ने लिखा है तो मैं पढ़ लेता था उसको, वरना स्किप भी कर लेता था। अगेन मैं गांव में था, मेरे पास फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं आता था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, उससे पढ़ लेता था। और कई न्यूज़पेपर टेलीग्राम पे मिल जाते थे या वेबसाइट पे मिल जाते थे। तो अगेन 8 to 9:30 न्यूज़पेपर, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता था। 10 बजे से मेरा था ऑप्शनल का टाइम टिल 12:45। ये मेंस के टाइम का मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, फिल्म मेरा थोड़ा अलग टाइम टेबल था। 12:45 तक ऑप्शनल पढ़ता था। अगेन 12:45 to 1:45 1 घंटे आंसर राइटिंग जरूर करता था विद इन टाइम। लास्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट मैं इतना स्ट्रिक्ट होता था कि मैं पानी का भी ब्रेक नहीं लेता था, बायो ब्रेक भी नहीं लेता था। ऐसा मैं मान के चलता था कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, कोई लीनियंसी नहीं, विद इन टाइम मुझे कंप्लीट करना है जितना भी करना है। तो अगेन दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो ट्राई, तभी आप मेन एग्जाम में भी आपको प्रेशर नहीं आएगा जब 6 घंटे आपको लिखने पड़ेंगे डेली। देर आफ्टर अगेन थोड़ा सा ब्रेक लेके 3 बजे वापस शुरू करता था, जीएस पढ़ता था। 3 to अराउंड 6 6 to 7 में एक्सरसाइज करता था, नॉर्मली साइकिलिंग के लिए चला जाता था। और फ्रॉम 7 to 9 अगेन ऑप्शनल, नहीं 7 to 9 जीएस पढ़ता था। रात में फिर अगेन जीएस ही पढ़ता था या ऑप्शनल, डिपेंड करता था मेरा लास्ट डे का प्लान क्या है, जो भी माइक्रो प्लान मैंने खुद के लिए बनाया। और रात में अराउंड 45 मिनट्स मैं मैप्स के लिए देता था। तो बाय 12 12:30 मैं सो जाता था। स्लीप में कभी भी मैं कंजूसी नहीं करता था, 7 साढ़े 7 घंटे हमेशा कोशिश करता था कि 7 आवर्स मिनिमम स्लीप हो मेरी, क्योंकि स्लीप के साथ आप वेल रिफ्रेश रहते हो। तो ये मेरा था मेंस के टाइम में। अगेन प्रीलिम्स के टाइम में टोटली डिपेंड करता है, टाइमिंग सेम रहती थी बट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे जीएस 1 2 3 4 वाइज नहीं पढ़ता था, तो बट टाइमिंग सेम रहता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डिड यू अलॉट फॉर करंट अफेयर्स इन अ डे? आई थिंक हमने थोड़ा सा इसको पहले भी कवर कर लिया है। प्रीलिम्स और मेंस के टाइम में मेरा डिफरेंट शेड्यूल था। जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स के टाइम में अराउंड 65-35 का रेशो था और मेंस के टाइम में 70-30 का। मैं आपको सोर्सेज बता सकता हूँ कि मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करता था। अगेन 1.5 आवर के आसपास न्यूज़पेपर,
उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र का और साइंस रिपोर्टर का जो भी इशू आता था उसको पढ़ लेता था। एक बार आपकी पढ़ने की हैबिट हो जाएगी तो मे बी आपको ये जो भी मैगजीन्स है वो काफी रिपीटेटिव लगेगा, न्यूज़पेपर भी रिपीटेटिव लगेगा, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्त हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, फॉर देम सब कुछ नया है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो जैसे जैसे आते रहता था, किसी दिन योजना पढ़ लिया, किसी दिन कुरुक्षेत्र पढ़ लिया, वैसे पढ़ लिया। पीआरएस पे जो उनका मंथली रिव्यू आता है उसको पढ़ता था। अगेन इट इज वेरी शॉर्ट, 10 पेजेस में भी, उससे भी छोटा ही रहता था, उसको पढ़ लेता था। मंथली मैगजीन्स में नहीं पढ़ता था। जब पीटी आते थे, पीटी 365 या मेन 365, उनको पढ़ लेता था। तो और एक डाउन टू अर्थ, तो मेरे करंट अफेयर्स के यही सोर्स थे और कुछ ज्यादा नहीं था। तो मैं इनमें अब जितना टाइम लगा, मे बी 3 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सिंप्लीफाई एंड रीड एडिटोरियल। नाउ एडिटोरियल इंटेंसिवली किसी एक टॉपिक को पे वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको एडिटोरियल में कई बार बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करेंगे, या इंग्लिश उनकी ऐसी रहेगी, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आपको नहीं पता रहेगा। तो एडिटोरियल्स आप तब समझेंगे अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। पहली बात, आपकी इंग्लिश अच्छी है। वो धीरे बाय द टाइम धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। टेक्निकल टर्म्स की आपके पास नॉलेज है, जैसे कि अगर आप कोई इकोनॉमिक्स वाला ही एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मे बी जीडीपी से रिलेटेड, मे बी आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आपको जो उसमें रेफर किया गया है कि इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस, वो आपको उस जजमेंट का बैकग्राउंड नहीं पता, तो आपके लिए वो काफी डिफिकल्ट होगा। तो एडिटोरियल पढ़ना आपको धीरे धीरे आप उसमें ज्यादा पारंगत होंगे। पहले अपने बेस नॉलेज को अच्छा करिए, थोड़ी सी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और उसके बाद आपको होगा, आप ज्यादा आएंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि जब भी आप इन टेक्निकल टर्म्स को देखें या फिर किसी वर्डिक्ट को देखे या कुछ ऐसा रेफरेंस दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करिए। जस्ट गो ऑन गूगल, उन चीजों को टाइप करिए, और फिर जब आप उनको एक तरह से अच्छे से समझ जाएंगे, मे बी अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया है कि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी स्लम्प और दिस एंड दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट रेपो एंड रिवर्स रेपो कांस्टेंट, या फिर घटाया बढ़ाया है, तो सी द कॉन्सेप्ट इन दैट। और उसके बाद एक बार आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझिए, और आपने जब उसको समझ लिया तो नेक्स्ट टाइम इट वुड बी इजी फॉर यू। सो फॉर बिगिनर्स दिस इज द वे। अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको एडिटोरियल ज्यादा अच्छे से समझ। मे बी आजकल कुछ एडिटोरियल प्रोग्राम्स हैं, कुछ इनसाइट आईएएस या किसी और पे भी आप देख सकते हैं, अनअकैडमी में भी काफी कुछ आता है। तो फॉर बिगिनर्स आप अगेन उसका भी यूज कर सकते हैं, बट मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा भी आपके कोई और डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, अनअकैडमी की टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड उसके अलावा आप मुझे भी कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं।